Hello everyone, welcome once again, and this is the lesson number 2, and we have done 16 question. So the question number 17, which of the following schedule of the Constitution of India contains the provision of Anti-Defection Act? So it is in the schedule number 10. ठीक है, Anti-Defection Act is in the 10th schedule. This you have to remember. Its schedule belongs to the language. Second schedule, the salaries and remuneration given to these officials. Fifth schedule, to the scheduled caste. Okay, in ATM, to the ATMs. ATM means Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. To the people belonging to these states, it is given the reservation to them. ठीक है. Next, 18th question. Constitution of India recognize only linguistic minorities, religious minorities, linguistic and minority both, or ethnic minorities. So the option is C. We have religious and linguistic minorities. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, इसका ऑप्शन आएगा डी. नेक्स्ट, an amendment of the constitution can be initiated by the third statement, that is state legislature. तो थर्ड तो क्या गलत, तो ऑप्शन सी कैनॉट बी देयर, बी कैनॉट बी देयर. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन एंड टू. सो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अमेंडमेंट के लिए भी द प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड इन एनी ऑफ दी टू हाउसेज, इधर लोकसभा और राज्यसभा, या फिर दोनों के अंदर होगा, या फिर स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है. सो ऑप्शन डी 1 and 2, from these two this can be amended. Next, consider the following statement about the recent recommendations of the election law by the Representation of the People Act 1996. This is 1999 means this paper was asked in 1999. ठीक है. सो इसमें सबसे पहले हम ईजिएस्ट स्टेटमेंट देखेंगे. स्टेटमेंट थर्ड देखो, ए कैंडिडेट कैन नॉट नाउ स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम मोर देन वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. ये गलत है, क्योंकि लास्ट लोकसभा इलेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी he contested the election from the two seats, that is Varanasi and Vadodara. After winning, he leave this seat and he is MP from Varanasi. ठीक है. So this option is wrong. So option 3 cannot be there. So option A is wrong. C went and D also. So we are left with only one. That is 1 to 4. So now we read the first, second and fourth statement. The first statement says कि कोई भी आदमी, if any person who disrespect the national flag and showing disregard to the Constitution of India, he will not be eligible to contest the election for the parliament and state legislature for 6 years from the date of conviction. ठीक है. Next, there is an increase in the security deposit of a candidate who has to contest election to the Lok Sabha. अब ये लोकसभा के इलेक्शन के लिए उसकी जो डिपॉजिट होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो फीस है 20,000 रुपीज़ इन केस ऑफ MP एंड 5,000 इन केस ऑफ MLA. ठीक है, इसको याद रखना. ये क्वेश्चन आगे अपकमिंग ईयर्स में पूछा गया था UPSC द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ इज नो इलेक्शन विल बी काउंटरमेंडेड ऑन द डेथ ऑफ ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट. ठीक है, ये एक्सपायर हो गया तो दोबारा कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं होगा उसकी जगह पे. ठीक है. नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज नॉट करेक्ट. इसने पूछा नॉट करेक्ट. ये मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर ऑफ द हाउस. ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया, क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा के अंदर टेबल हो सकता है, ना कि राज्यसभा के अंदर. ठीक है, राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं होती मनी बिल से रिलेटेड. ऑल द पावर रिलेटेड टू द मनी बिल्स आर विद लोकसभा. और जो स्पीकर है, who will decide whether a bill is money bill or not, full discretion is given to the speaker. ठीक है, स्पीकर जो भी कह देगा कि ये दिस इज द मनी बिल, तो मनी बिल होगा. ठीक है. ऑप्शन डी देखो, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल. बिल्कुल ठीक बात है, ही कैन नॉट रिटर्न. द राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल पास बाय लोकसभा. देखो ये क्वेश्चन विद इन 14 days. ये अलग से MCQ बनता है, ये कि कितने दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई बैक करना पड़ता है. 14 days मतलब 2 fortnight, 1 week, 2 week, 1 month, 6 month, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर विद इन 40 days दे हैव टू रेस्पॉन्ड बैक. ठीक है. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी. बिल्कुल ठीक बात है. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए. इसने पूछा था नॉट करेक्ट, तो स्टेटमेंट गलत थी, तो ऑप्शन इसका हो गया ए. नेक्स्ट, 22nd क्वेश्चन, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 रेफर्स टू दी. पंचायती राज, हमें पता है पंचायती राज से रिलेटेड थी. ठीक है.
तो ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो ये नहीं था। गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी देखते हैं, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ऑप्शन सी इज देयर। डी, गारंटी द राइट ऑफ दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट से थोड़ी ना आए थे, ये तो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 1992, उसके अंदर हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को के बारे में बताया गया था। ठीक है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट वी विल यूज। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, द स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप द स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर टू स्पीक, दैट फिनोमेना इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज यील्डिंग द फ्लोर। अब हम सभी के बारे में बात देख लेते हैं, क्या होते क्या कहेंगे। डेकोरम का मतलब होता है कि द टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ शुड बी प्रेजेंट, शुड बी देयर। ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग द फ्लोर? क्रॉसिंग द फ्लोर मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपनी एक गाइडलाइंस जारी की हैं, ठीक है, कि वी विल वोट इन दिस इन अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, बट एनी एमपी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी गोज, you can say, divert from the main lines of the party, this is called crossing the floor। उसके अपोजिट होके वो वोट करता है। ठीक है, इंटरपेलेशन होता है, इट्स द गवर्नमेंट के पास जो पार्लियामेंट होती है, एक ऑफिशियल फॉर्मल बोल रहे हम इसको, सही भाषा में बोले तो हम फॉर्मल बोल सकते हैं कि एक फॉर्मल रूल ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम विच द पार्लियामेंट गिव्स द रिक्वेस्ट टू द और टू द गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को कुछ फॉर्मल्स सब्जेक्ट के बारे में बताती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरपेलेशन। नेक्स्ट, अब अबाउट द AGI के बारे में क्वेश्चन था। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक बात है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ही इज मेंबर ऑफ इधर, नहीं ये मेंबर नहीं है। दो ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, दो ही कैनॉट वोट। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, नो ही कैनॉट बी, ही इज you can say appointed by the president and he worked during the pleasure of the president, so there is nothing like that। ठीक है, option 1 and 2 are correct, so option A। next 25, the primary function of the finance commission, अब ये मत देखो, the primary function of finance commission is, option A, distribution of revenue between center and state, this like India, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर द एनुअल बजट, नो, एनुअल बजट ये नहीं बनाता, कौन बनाता है? इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, एलोकेट फंड्स टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें लगेंगे तो ये भी कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू का सेंटर और स्टेट्स के बीच में, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस इज टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन इज दैट, ऑप्शन सी इज देयर। Which article of the Indian Constitution provides that it shall be the endeavour of every state to provide adequate facility of instruction in the mother tongue at the primary stage of education? That is article number 350A। It says that कि जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाले स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो उनकी मदर टंग के अंदर होगी। ठीक है, और 350 होता है डेवलपमेंट ऑफ दैट लैंग्वेज एंड 51 इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट स्टेटमेंट, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये करता है। नेक्स्ट इज टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंट्रीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें पूछा कि नॉट परफॉर्म, ऑप्शन बच गया डी, तो डी इज द आंसर। टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इश्यू पब्लिक मनी टू इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन टू द एक्सचेकर, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फोर्थ शेड्यूल? फोर्थ शेड्यूल क्या होता है? एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू द राज्यसभा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है,
List distribution of power between state and 7. This is and the schedule number 7. Contain languages listed in the constitution, that is 8th. Option C and D both are same. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा D. So that's all for this video, and we will be solving 10 more questions. We can't you can say discuss more than 10 questions because it becomes very large, you can say large video, and we will not be able to discuss. So that's all for this video. I will be uploading the next video very soon. Thank you.